Good morning, children. Today in EVS, we are going to start with a new chapter, Lesson 2, Animals Protection and Conservation, children. So what we are going to study in this particular chapter about the animals, how they are protected or how do we conserve them. Okay, children. So before starting the chapter, I would like to explain you the heading of the chapter. Okay, what do you mean by protection, children? In general, किसी को सेफ रखना या किसी की सुरक्षा करना, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन. ओके, सो ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हुज प्रोटेक्शन? It is related with animals. So in this chapter we are going to study about the protection of the animals. Okay children, how we can protect them. Next comes conservation. What does conservation means? Conservation means the protection of the natural world, whole world. Okay, or you can say किसी की संरक्षण करना, like animals. Okay, किनकी संरक्षण कर रहे हैं हम यहाँ? Animals की. Okay, we conserve the animals. Okay, so let's move on, children. In the previous class you have learned how adaptation helps animals to survive. Means in the last chapter, before this chapter, previous chapter, what we have learn how to adapt, how adaptation helps animals to survive. Means adaptation जो है animals को help करता है survive करने में. Now what do you mean by this word adaptation, children? It means it is a feature which helps an animal or plant to survive, or you can say as नई परिस्थिति के अनुसार किसी वस्तु को बदलने की प्रक्रिया. Like right now, a current example I'll provide you all, children. Like now how you are studying. Earlier you used to come to school, you used to attend the classes in the classroom, we teacher used to teach you in the class. But now due to COVID problem, what we are doing, how you are getting your studies? You are getting your studies through your videos. Okay, so what you have done, you have adapted the new way of learning. Okay, and we teachers have adapted the new way of teaching because it is the demand of the time. Time demands that we should follow this way of teaching. Okay, now got it? What do you mean by adaptation, children? So जब भी कोई वैसी परिस्थिति आए जब हमें चेंजेस लाना चाहिए फॉर द गुड, सो इट इज नोन एज एडेप्टेशन. सो व्हाट यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास, यू हैव लर्न हाउ एडेप्टेशन हेल्प्स एनिमल टू सर्वाइव. मीन्स समय के अनुसार वो भी बदलाव करते हैं, बदलाव लाते हैं सो दैट वो सर्वाइव कर सके इस वर्ल्ड में. ओके, over the years animals have developed certain body features that help them to adjust with the environment. Means वो क्या है, उनके बॉडी के जो फीचर है, ओके, वो उन्हें समटाइम्स हेल्प करती है कि एनवायरनमेंट में वो कैसे एडजस्ट कर सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल द थिक स्किन ऑफ अ कैमल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट सन, and the thick coat of fur on the body of a polar bear protects it from extreme cold. Okay, means example is camel. Camel की skin जो होती है वो इस टाइप की बनी हुई होती है कि वो हॉट डेजर्ट में भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ द स्किन एंड थिक कोट ऑफ फर ऑन द बॉडी ऑफ अ पोलर बेयर. ओके, पोलर बेयर जो होती है उसके बॉडी के ऊपर भी फर होती है जिससे कि वो हेल्प करती है एक्सट्रीम कोल्ड में अपने आप को बचाने के लिए. ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स. मीन्स what we are going to see over here, protective adaptation of animals means protective way animals के adaptations के. Okay, many kinds of animals live on earth, this we know. Many of them kill other animals to eat. Generally larger and more active animals hunt smaller and slower animals. Animals that kill and eat other animals to survive are called predators. What do you mean by predators, children? Animals over here जो predators के अंदर आते हैं, हेडिंग के अंदर एनिमल्स आते हैं. और predators मीन्स हम लोग कहते हैं कोई भी एक एनिमल अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जीवित रहने के लिए किसी दूसरे एनिमल को किल करके खाता है. ओके, दैट इज नोन एज predators. मीन्स वो किसी like picture is provided over here, children. See, it is a picture of a
deer, okay, and this is leopard. What leopard is doing? Leopard is trying to kill it. Why? For his food. Okay, now is it clear to you what are predators? He is a predator, okay, because he is going to kill this deer for his food. Okay, so with so many predators around, an animal is never really safe. So to protect themselves, animals have developed certain features over the years. These include adaptations that change not only their bodies but also their behavior. Means in these days what animals have done, they have changed. Okay children, they have changed. Many new features you can say has come, like this, you can say their bodies, their behavior, which help them to survive. Okay, so let us now read about some adaptations. Children, over here, size and number. According to the size and number, we are going to read about the adaptations of the animals. Some animals like elephants, whales, bear and hippopotamuses scare away their enemies by their size. Means इनकी जो size होती है, elephant जो huge animal है, whale, bear, hippopotamus, ये जो है इनकी body की जो structure होती है, you can see over here, bear picture is given, over here elephant is given. So इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो बहुत बड़ी होती है, और स्ट्रक्चर को देखते हुए बॉडी बिग है देखते हुए छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो इनसे डर जाते हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. Okay children, now some animals like elephants, chimpanzees, fish etc like to stay in groups to protect themselves. Again children, कुछ ऐसे एनिमल्स है लाइक एलिफेंट्स हैं, चिंपैंजीज है, फिश है, इस टाइप के ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. वाई चिल्ड्रेन? बिकॉज अगर ये ग्रुप में रहेंगे तो जो एनिमल इन्हें किल करने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, वो इनसे डर जाएगा क्योंकि वो अकेला होगा. ओके, सो दे लव टू बी इन ग्रुप्स. ओके चिल्ड्रेन, नाउ while moving in a group, elephants form a circle to protect the older and weaker members of their families as well as their young. Means जब वो ग्रुप में घूमने निकलते हैं बाहर या रहते हैं कहीं भी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ओल्डर और वीकर, ओल्डर मतलब जो बुजुर्ग हाथी होते हैं या जो वीक मेंबर होते हैं, उनको क्या करते हैं, और छोटे बच्चे जो उनके होते हैं उनको चारों ओर से एक सर्कल बना लेते हैं और उनको बीच में रख के निकलते हैं, so that they could protect them. Now penguins make their nests close to each other. They hunt for fish in packs. Means penguins जो हैं वो nest जो रहता है अगल बगल ही बनाते हैं, so that it helps them to hunt. They hunt the fish in packs. Okay, the reason is that if a predator such as a walrus decides to feed on penguins, most will survive. Means walrus जो होती है वो इन पर डिपेंड होती है. Okay, they kill the penguins and have them as food. So ये क्या करती है, ये पैक्स में आते हैं और दे स्टे इन ग्रुप्स, और उनके जो घर होते हैं वो बहुत ही बगल बगल रहते हैं, सो दैट जब भी यू कैन से एज वॉलरस जो होती है अगर उन्हें हंट करने के लिए आती है तो ग्रुप्स में जब इन्हें देखती है, पैक्स में इन्हें जब देखती है तो वो उन्हें छोड़ देती है एंड इट डजंट किल्स देम. सो इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एस्केपिंग और प्रोटेक्टिंग themselves. The walrus will able to eat only one or two. Means अगर ये ग्रुप में एक साथ खूब ज़्यादा रहते हैं तो क्या होता है, वॉलरस जो रहती है वो एक साथ ज़्यादा पेंगुइन को हंट नहीं कर पाती है, एक या दो ही को हंट कर पाती है. ओके चिल्ड्रेन, सो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नंबर इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज यूज ऑफ पॉइजन एंड बैड स्मेल. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पॉइजन जिनके पास होता है बॉडी में और कुछ बैड स्मेल रहता है. ओके, with the help of that they protect themselves. Now many small animals produce venom in their bodies to protect themselves. Children, as I said you, कुछ ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी में अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेनम प्रोड्यूस करते हैं. चिल्ड्रन, ओके, सो themselves. Many poisonous
Snakes like cobras and vipers bite their large predators and inject the venom in their body. मीन्स क्या करते हैं वो, बहुत सारे ऐसे पॉइजनस स्नेक्स और कोबरास जो रहते हैं वो और वाइपर्स होते हैं, वो बाइट करते हैं, अपने से बड़े लार्ज प्रीडेटर को इंजेक्ट कर देते हैं. ओके, इंजेक्ट करते हैं थ्रू वेनम. Due to this, even the largest of predators die quickly. सो इससे क्या हेल्प मिलता है उसे, जो प्रीडेटर्स होता है, लार्जेस्ट वन जो होता है, बड़ा प्रीडेटर जो होता है, वो इजिली डाई हो जाता है, मर जाता है. ओके, नाउ सिमिलरली सम इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड वॉस्प्स एंड एनिमल्स लाइक स्कॉर्पियंस इंजेक्ट देयर वेनम इन द बॉडीज ऑफ द एनिमीज बाय स्टिंगिंग. मीन्स कुछ और जैसे हनी बीज होते हैं, वास्प्स होते हैं, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने प्रीडेटर्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं उनके बॉडी में अपने वेनम को. मीन्स स्टिंगिंग करते हैं, वो अपने क्या कहते हैं उसे चुभा देते हैं. पॉइजन जो उसके बॉडी में रहती है वो उनके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है. विद द हेल्प ऑफ दिस दे कुड हेल्प देमसेल्व्स टू सर्वाइव. ओके, नाउ अ स्कंक इज अ स्मॉल एनिमल. स्कंक जो होती है वो एक छोटी सी एनिमल होती है. इट प्रोड्यूसेस अ केमिकल हैविंग अ वेरी बैड ओडर इन इट्स बॉडी. मीन्स ये जो एक एनिमल है स्कंक जो होती है, उसके बॉडी में एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है जो कि बहुत ही बैड ओडर प्रोड्यूस करता है, बैड स्मेल यू कैन से. ओके, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. When an enemy approaches a skunk, it turns its back, raises its tail and shoots the liquid. What does it mean, children? कि जब भी कोई एनिमल और कोई प्रीडेटर यू कैन से स्कंक के ऊपर हमला करता है तो स्कंक क्या करती है, वो टर्न बैक होती है, अपने बैक में और अपने टेल को रेज करती है और लिक्विड जो रहता है उसे शूट कर देती है. तो क्या होता है उससे, वो जो बैड ओडर होता है, स्मेल होता है, उससे जो उसका प्रीडेटर होता है वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाता है, या तो वो मर जाता है या तो वो भाग जाता है. ओके, बिसाइड्स द फाउल स्मेल द स्प्रे कॉजेज अ सीरियस पेन एंड डिस्कम्फर्ट टू. सी चिल्ड्रन, इट्स गिवन दैट ओनली कि उस फाउल जो स्मेल आता है, गंदा वाला जो स्मेल रहता है, हॉरिबल वन, तो उससे क्या होता है, सीरियस पेन होता है प्रीडेटर को, या फिर डिस्कम्फर्ट मीन्स बेचैनी होती है और वो वहाँ से भाग जाता है और उसे छोड़ देता है. ओके, सो यूज ऑफ पॉइजन एंड बैड स्मेल. इज इट क्लियर टू यू ऑल? दिस इज ऑल्सो अ वे टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. और एक नेक्स्ट वन इज एस्केपिंग फ्रॉम डेंजर. डेंजर से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं वो लोग. मेनी एनिमल्स आर एबल टू रन, स्विम और फ्लाई अवे वेरी फास्ट when attacked by an enemy. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, उड़ सकते हैं अपने आप को अपने एनिमी से बचाने के लिए. ओके, अ डियर और अ गैजल इज डिफिकल्ट टू आउटरन इवन फॉर अ स्ट्रॉन्ग हंटर लाइक अ टाइगर और अ लायन. मीन्स डियर और गैजल. गैजल चिल्ड्रन, इट जस्ट सिमिलर टू डियर, इट लुक्स लाइक अ डियर. ओके, वो ऐसे जानवर हैं जो कि जिनके पास एक क्वालिटी होती है, बहुत स्पीड वो रन कर सकते हैं, बहुत फास्ट यू कैन से कि वो रन करते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हंटर. स्ट्रॉन्ग हंटर जो ताकतवर हंटर होता है उनका, वो होता है लायन या टाइगर. वो उनसे भी अपने आप को बहुत ईजिली अपने जान को बचा लेते हैं दौड़कर. ओके, लाइक अ माउंटेन गोट कैन क्विकली क्लाइंब वेरी स्टीप रॉक्स टू डॉज इट्स हंटर्स. मीन्स माउंटेन गोट, पहाड़ों पर जो गोट रहती है वो क्या है, वो बहुत जल्दी क्लाइंब करने की क्वालिटी उसके अंदर एक फीचर है. इट कैन क्लाइंब वेरी क्विकली वेरी स्टीप रॉक्स. बहुत जो स्टीप रॉक्स होते हैं ना, उसमें भी वो बहुत स्पीड में क्लाइंब कर सकती है. क्यों क्लाइंब करके क्या करती है वो, टू डॉज इट्स हंटर्स. डॉज मीन्स वो अपने आप को बचाने के लिए हंटर को बेवकूफ़ बना के निकल जाती है, भाग जाती है, क्लाइंब कर जाती है और वो बेवकूफ़ बना देती है अपने हंटर को और अपने जान को वो बचा लेती है. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.